let us begin with quadratic equations. It's a very interesting chapter and it's a lot of fun. And unlike algebra that we did so far, we did functions and inequalities, both of which were not really part of our 10th curriculum. But quadratic equation was, right? हम सब ने quadratic equation स्कूल में पढ़ा हुआ है. 8th, 9th, 10th तीनों में से किसी ग्रेड में होता है, right? Inequalities not really, है ना? और functions तो for sure नहीं था 10th तक. था क्या किसी को? तो ये कोई ICSE बोर्ड में वगैरह था, CBSE में था क्या? स्टेट बोर्ड में तो नहीं होता है for sure. ठीक है? आई डोंट थिंक आईसीएसई में वगैरह भी 10th तक फंक्शंस होता है. करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग. ठीक है, बट क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इज फाइनली अ ग्राउंडिंग चैप्टर और इसके बाद हम लॉग पढ़ेंगे, वो भी एक ग्राउंडिंग चैप्टर है कि भाई हाँ ये तो होता है 10th तक हमने पढ़ा है. लॉग आल्सो नॉट सो मच टिल 10th, इट कम्स इन 11th एंड 12th, बट इट्स रिलेटिवली इजी टू लर्न एंड देयर आर सम पैटर्न्स टू सॉल्व, सो इट्स easier, right, compared to functions and inequalities. That's why I said कि this is really interesting chapter and I am rather excited to teach it. ठीक है, हम quadratic equations दो हिस्सों में पढ़ेंगे. First half of the class we are going to talk about the concepts related to quadratic equations. ठीक है, as I always have been teaching you arithmetic algebra all throughout कि हम जो भी चीजें हम bucket कर सकते हैं in form of a concept, we learn that. है ना, क्योंकि algebra हो, arithmetic हो, कोई भी chapter हो, then like everything falls under a general umbrella of math. So maths तो यार it's not defined by limits, right? Lot of things can keep coming, but we try to bring whatever we can bring in a bucket and learn that way. कि हम one bucket at a time पढ़े, है ना? क्योंकि हम अगर random पढ़ते जाए questions करते जाए, तो where do we ground ourselves? We want to ground ourselves as something, right? And develop certain thought process. So my motive is that I'll teach you certain concepts first. But quadratic equations की questions are in general quadratic equations की questions or in general algebra की questions. You cannot necessarily map it to a certain concept, so to say, like arithmetic questions can be mapped, right? तो इसीलिए पहले हम concepts पढ़ेंगे. We will learn certain thought processes. I'll tell you in which kind of questions or in what kind of variables that are asked to you. तो उस हिसाब से which of these concepts should trigger in your mind. ठीक है, तो उस हिसाब से हम concept पढ़ेंगे. In the second half of the class, we will just solve questions. This will be general quadratic equation questions to solve. Fair? Understood? Everybody on board? Right? Let's begin. So basics of quadratic equation. What are quadratic equations? ठीक है, तो उसका सबसे बेस डेफिनेशन लेट अस हैव अ लुक एट इट. तो एनी इक्वेशन व्हिच इज ऑफ द फॉर्म ax square plus bx, any equation of the form ax square plus bx plus c equals to 0 is a quadratic equation, right? Where a, b, c are constants, right? There are some constant number and x is your variable. ठीक है, इसमें होता क्या है? Basic thing is that your a, b, c can be any real number, but a cannot be equal to 0. Because if a is 0, then it will just become bx plus c equals to 0. That is not quadratic. It is linear, right? ये quadratic equation नहीं बनेगा, ये एक linear equation बनेगा, and that is why your a can't be 0. If b is 0, it's okay. If b is 0, it will become ax square plus c, which is all right, right? अगर c 0 बनेगा तो it will become ax square plus bx. This is also all right as a quadratic, right? As long as there's x square happening there, right? But what is not okay is a being 0. ठीक है, बाकी everything can be 0. So this is what a quadratic equation is. Any equation of the form ax square plus bx plus c equals to 0. Okay. इसमें then the third term is also d. D is what? D is your determinant. We learned about it, right? So d का फॉर्मूला हमने उसमें भी सीखा था आपने, 2 सेकेंड, इनइक्वालिटीज में, राइट? हमने डी का फॉर्मूला इनइक्वालिटीज में भी सीखा था. व्हाट इज डी? Very good, very good. So the fourth thing here is also d. What is d? D is called as discriminant. What is called d? D is a discriminant. What is a discriminant? I'll tell you why. Discriminant मतलब जो discrimination करेगा, है ना? तो इसको ऐसा नाम क्यों दिया? I don't know if it is factually true, but ये मेरा वो है कंजेक्चर कि ऐसा नाम इसका क्यों होगा. बट हाँ, तो ये इसका फॉर्मूला क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac. ठीक है, तो इसको भी हम अभी पार्क करेंगे कि ये ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में से बी लो, ए लो, सी लो, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज योर डिस्क्रिमिनेंट. अब इसको डिस्क्रिमिनेंट क्यों कहते हैं, क्यों इसका ऐसा नाम होगा, और ये डी एक एडिशनल टर्म क्यों आई होगी, ये मैं बताती हूँ तुमको आगे जाके. बट वी आर पार्किंग टू हियर. दिस इज समथिंग दैट वी ऑलरेडी नो ऑफ. वी हैड अ हिंट टू इट इन इनइक्वालिटीज एज वेल एंड दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू गो अहेड. अब आफ्टर लर्निंग द बेसिक्स, the next thing that happens is we are learning how to find the roots of quadratic equation. तो सबसे पहले roots क्या है? Roots are nothing but the values of x.
है ना। मेरी कोई भी अगर मेरी नॉर्मल एक लीनियर इक्वेशन होगी ए एक्स प्लस बी इक्वल्स टू 0, तो इसमें एक्स की वैल्यू हम माइनस बी बाय ए निकालते हैं, राइट। तो ये एक्स की वैल्यू हो गई ना, ये एक्स की वैल्यू हो गई। तो लेट्स से ये रूट ऑफ लीनियर इक्वेशन है, तो रूट इज नथिंग बट द आंसर टू द वैल्यूज ऑफ एक्स। ये कोई नया फैंसी टर्म नहीं है, बस इसको बोलते हैं इट्स रूट्स। क्यूबिक इक्वेशन के भी रूट्स होते हैं, सो एनी पॉलिनोमियल इक्वेशन हैज रूट्स, दैट इज बेसिकली वैल्यू ऑफ एक्स। अब जितना पावर है उतने वैल्यू ऑफ एक्स आएंगे। लीनियर इक्वेशन में एक्स की पावर 1 है तो ए की वैल्यू आती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ए एक्स स्क्वायर होता है तो दो वैल्यूज आएंगी मैक्सिमम, मैक्सिमम दो वैल्यूज आएंगी। क्यूबिक इक्वेशन में मैक्सिमम तीन वैल्यूज आएगी, राइट। तो हाउ मेनी रूट्स डज क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव, मतलब हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ एक्स डज क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव, इट हैज टू वैल्यूज, है ना। तो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ऑफ द फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, इसके दो रूट्स होते हैं। क्या रूट्स होते हैं दो? एक मैथमेटिशियन ने फॉर्मूला निकाला, हम फॉर्मूला सीखेंगे। इट इज गिवन एज एक्चुअली वन सिंगल फॉर्मूला, तो दो रूट्स आते हैं इसके, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। अभी इसमें बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या है तुम्हारा? डी है, राइट। इट्स डी, राइट। तो बेसिकली इट्स माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बाय 2a। तो ये बी स्क्वायर माइनस 4ac जो अंदर आ रहा है उसको उन्होंने डी वेरिएबल दे दिया था, ठीक है। तो दो रूट्स कौन से बनेंगे? एक बनेगा माइनस बी प्लस अंडर रूट डी बाय 2a, दूसरा बनेगा माइनस बी माइनस अंडर रूट डी बाय। Fair. So these are the two roots of any quadratic equation. You find it using this formula. Fair. तो अभी ऐसे दो वैल्यूज आएगी, एक प्लस के साथ एक माइनस के साथ, है ना। तो लेट अस फाइंड द रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सॉल्व करो, सॉल्व करो इसको। गुड, वेरी गुड। सो हाउ आर वी गोइंग टू नोट? कभी भी तुम्हें कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखेगा, गोइंग अहेड ऑलवेज पुट अ हैबिट, कोई भी तुम्हें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखा ऑलवेज पुट अ हैबिट कि हम ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी से उसको हमेशा कंपेयर करें, और आफ्टर दैट कंपैरिजन हम ए बी और सी की वैल्यू सेपरेटली लिख लें। तो a is 3, b is -4 and c is -5। तो हम हमेशा a b c की वैल्यू लिखेंगे। अब इसके रूट्स निकालने बोला है, तो रूट्स क्या है? d की वैल्यू भी निकाल लो। d is b स्क्वायर -4 इंटू a इंटू सी, राइट। प्लस आ जाएगा, है ना, प्लस आ जाएगा विच इज वॉट 2060। 76 है, 66 थोड़ी है, 76 है ना। तो अब ये 76 आ गया, तो उस हिसाब से व्हाट आर योर रूट्स? Your roots are minus b, that is minus of -4 minus b plus minus under root 36 by 2a, 2a is 6, right। This is 4 plus minus under root 76। 76 का under root कैसे निकालेंगे? ये 4 का मल्टीपल है, right। So it is basically 4 1s are 4, 4 9s are 36, ऐसा है ये, divided by 6। तो अगर मैं इसको आगे फर्दर सॉल्व करूं तो क्या मिलता है मुझे? मैं ये यहाँ पे ये 4 जो अंडर रूट है इसको बाहर करके मैं 2 कर सकती हूँ। दिस बिकम्स 4 प्लस माइनस 2 रूट 19 बाय 6, राइट। 4 बाहर निकला अंडर रूट के तो वो 2 बन गया, तो ये 2 रूट 19 होगा। अब ये सारा का सारा एवरीथिंग ऑफ 2 2 से कट हो सकता है, 2 2 3, सो दिस इज 2 प्लस माइनस रूट 19 बाय 3। सो दीज आर योर रूट्स। व्हाट आर द टू रूट्स? 2 प्लस रूट 19 बाय 3, 2 माइनस रूट 19 बाय 3। ऐसे दो आंसर्स हमारे आते हैं। फेयर। सो दिस इज व्हाट क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का रूट्स इज, ठीक है। तो रूट्स इज नथिंग, रूट्स इज नथिंग but the value of x for which the equation holds true। what equation की ये value of x अगर तुम डालोगे इक्वेशन में, अगर ये 2 प्लस रूट 19 बाय 3 डालोगे तुम इक्वेशन में, या तुम 2 माइनस रूट 19 बाय 3 डालोगे इक्वेशन में, इस इक्वेशन में x के जगह पे, तो आंसर 0 आएगा। तो आंसर क्या आएगा? आंसर 0 आएगा। That is why these are the roots of equation. So what are roots? Roots are those value of x for which the equation holds true. So if you put them in the place of x, your answer comes 0। I'm repeating this again because it's really important to understand fundamental। हम क्या करते हैं, इन्हीं चीजों के थ्रू ऐसे ब्रश अप कर देते पट से। तो जब इनका एप्लीकेशन आता है, तुम्हें डायरेक्टली बोला फाइंड द रूट, तो तुम निकाल लोगे, बट इसी के एप्लीकेशन रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन आएगा तो नहीं आ रहा मैम, है ना। तो इसलिए हमें हर एक चीज का मीनिंग समझना जरूरी है कि व्हाट इज अ रूट? रूट इज द वैल्यू ऑफ x फॉर व्हिच द इक्वेशन होल्ड्स ट्रू। सो दीस टू रूट्स आई कैन पुट इन द प्लेस ऑफ x इन द इक्वेशन एंड आई विल गेट द आंसर
0. That is what roots are. Fair? अब इसको हम आगे बढ़ते हैं. तो ये तो हो गया roots of equation. अब the next thing is finding nature of roots. ठीक है? Roots of the equation हमने निकाल दिया. अभी nature of roots. कि roots की nature क्या है? Roots होगा कैसे? So I'll tell you what. Roots कैसे है? What are the roots like? Roots तो r minus b plus minus under root d by 2 है. यही है हमारे रूट्स. तो अगर ये हमारा रूट है और अभी हमको इनका नेचर निकालना है, तो हम इनइक्वालिटी में सीख चुके हैं कि अगर अंडर द रूट कुछ आता है तो दैट हैज टू बी पॉजिटिव. इफ यू रियली वांट सम रूट एंड इफ यू रियली वांट सम रियल नंबर टू बी योर आंसर, ये जो डी है तुम्हारा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए बिकॉज वो अंडर द रूट है. अगर वो लेस देन 0 हो गया तो इज दैट पॉसिबल? नो. राइट? तो इसका मतलब हमें मिलता है डी के तीन कंडीशन हो सकते हैं. एक तो योर डी इज ग्रेटर देन 0, और योर डी इज इक्वल टू 0, और योर डी इज लेस देन 0. ठीक है? These are the three conditions possible. है ना? Under these three conditions, what happens is, let's say if my d is greater than 0, then I end up getting two roots, two unique real roots. I end up getting two unique real roots. One of them is, and another is, correct? So these are the two roots that I end up getting, right? If my d is equal to 0, if my d is equal to 0, then basically my answer is, that is primarily minus b by 2a. So I don't get two answers now. I get only one root. So either you say you get one unique real root, एक ही आंसर मिलता है. ठीक है? या you get two equal roots. है ना? कि दो रूट्स है और दोनों एक दूसरे के इक्वल है. माइनस बी प्लस 0 by 2a एंड माइनस बी माइनस 0 by 2a. सो दोनों तरीके से कहा जाता है. सो टू रियल एंड इक्वल रूट्स, टू यूनिक रूट्स एंड टू इक्वल रूट्स. ऐसा बोलते हैं कि व्हेन d इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो हमारे दो रूट्स मिलते हैं. d ग्रेटर देन 0 पे टू यूनिक रूट्स एंड इसमें टू इक्वल रूट्स, बट दे आर आल्सो रियल, है ना? रियल इक्वल रूट्स. Fair? And when the d is less than 0, when the d is less than 0, what happens when my d is less than 0? My plus minus b plus minus under root some number that is less than 0 comes under the root by 2a. मतलब some negative number comes under the root. Negative का root possible है क्या? नहीं. This is not allowed in maths. So basically you get imaginary roots. इसको दो तरीके से कहा जाता है. एक तो कहते हैं you get zero real roots, or you get imaginary roots. Two imaginary roots. Imaginary roots मतलब imaginary numbers. ये theoretically to put on the paper है, but real में ये numbers exist नहीं करते. तो इस तरीके से ये sequence होता है. That in case of d greater than 0, you get two real roots. Here you get one real root, and here you get zero real. समझ गए? So why is it called discriminant? Because it basically discriminates if the roots will be unique or not. How many roots will be there? Will they be imaginary or real? So all of this that we are marking here is the nature of root. कि d की वैल्यू डिटरमाइन करती है कि तुम्हारे रूट्स कैसे होंगे. टू यूनिक रूट्स होंगे, वन यूनिक रूट, या टू इक्वल रूट्स होंगे, या जीरो रियल रूट्स होंगे. डिड यू अंडरस्टैंड दिस? Did you understand this? Yes. So every time you will have a question in quadratic equations के सेंस में, अगर तुम्हें every time you get a question where they talk about the root being equal, real, non-real, unique, non-unique, so understand they're talking about the nature of roots, and nature of roots is all determined basis the value of d, right? तो जो भी है d मतलब b square minus 4ac के ही अराउंड इसके कैलकुलेशंस होंगे whenever they are describing कि रूट्स का नेचर कैसा है. ठीक है? चलो basis that let us solve this question. A quadratic equation 2x square plus bx plus c equals to 0 has real and equal roots. देखो ये क्या है? Real and equal roots is the nature of roots. Real and equal roots is the nature of roots. तो nature of roots की बात कर रहे हैं. है ना? मैं थोड़ा थिक करूँ क्या पेन? ऐसे थिन पेन अच्छा लगता है कि थिक पेन अच्छा लगता है? मैं रैंडम कुछ भी सवाल पूछती हूँ, बट पूछ लेती हूँ. लास्ट ईयर आई यूज्ड टू टेक क्लासेस ऑन अ ब्लैक दिस थिंग. ब्लैक बेस होता था और उसमें ना ये कलर्स बहुत अच्छे दिखते थे. देन सम स्टूडेंट टोल्ड मी कि मैम आफ्टर द वर्क आई एम रियली टायर्ड एंड लुकिंग एट ब्लैक स्क्रीन मेक्स मी फील अ लिटिल डल. इट्स लाइक ओ चलो, देन आई मेड इट व्हाइट. राइट? तो ऐसे भी होता है ना? तो इसलिए मैंने पूछा कि शुड आई यूज अ थिकर पेन और थिनर पेन. बट एनीवेज, सो बेसिकली
2x square plus bx plus c equals to 0 has real and equal roots. So if you're saying real and equal roots, then it is about the nature of roots. It is about the nature of roots. तो nature of roots में क्या हो जाता है, हम d की वैल्यू डिटरमाइन करते तो अब उन्होंने बोला कि d कैसा है, रियल एंड इक्वल रूट्स. रियल एंड इक्वल रूट्स मतलब कौन सी कंडीशन है, d ग्रेटर देन 0, d इक्वल टू 0 की d लेस देन 0. रियल एंड इक्वल रूट्स है, कौन सा कंडीशन है, वेर d इक्वल टू 0 ना, d ग्रेटर देन 0, d इक्वल टू 0, राइट. d इक्वल टू 0 पे हमें इक्वल रूट्स मिले थे ना. लुक एट दिस, हमें दो इक्वल रूट्स कब मिलते हैं, जब d 0 हो जाता है. माइनस बी प्लस माइनस 0 है ना, तो सिर्फ एक ही रूट आता है ना. सो रियल एंड इक्वल रूट्स. अगर हमें अनइक्वल चाहिए तो अलग अलग रूट्स चाहिए, तो d ग्रेटर देन 0 है ना. किसी ने मुझे d ग्रेटर देन 0 आंसर दिया, इसलिए मैं रिपीट कर रही थी. सो इक्वल रूट्स है मतलब d 0 है ना. d 0 है तो d 0 है मतलब व्हाट इज द रिलेशन. सबसे पहले तो तुम्हें जब भी कोई ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया जाता है, यू लर्न टू कंपेयर इट विथ 2x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 को हमेशा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से कंपेयर करो. तो तुम्हें मिल गया a की वैल्यू कितनी है 2, b की वैल्यू तो b है, c की वैल्यू तो c है. अब इस हिसाब से जब हमारे पास ये वैल्यूज है तो वी आर सपोज टू पुट इट हियर, b स्क्वायर माइनस 4ac है ना इक्वल्स टू 0. चलो कैलकुलेट करते हैं. बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू सी इक्वल्स टू 0. तो बी स्क्वायर माइनस 8c इक्वल्स टू 0. व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन बी एंड सी. बी एंड सी के बीच में ये रिलेशन है भाई कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू 8c. दिस इज द रिलेशन बिटवीन बी एंड सी. ऑप्शंस में होगा ये, ठीक है, बट दिस इज द अप्रोच. द मोमेंट दे टेल यू द नेचर ऑफ रूट्स, यू आर लाइक ओके लेट मी फाइंड आउट द डी. इक्वल रूट्स बोला है तो 0 है, यूनिक रूट्स है तो ग्रेटर देन 0 है, नो रियल रूट्स बोला है तो लेस देन 0 है. ठीक है, उस हिसाब से मैं बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू निकालूंगा और उससे मुझे आंसर मिलेगा. So this is how it has to be. Okay, let's solve the next question. What is the next question? The next question says, in quadratic equation, this equation has real and equal roots. Same thing. This equation has real and equal roots. मतलब d is equal to 0. The moment they say कि real and equal roots, we know d is equal to 0. And what is again a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू कितनी है माइनस b, c की वैल्यू कितनी है c, राइट. ये भी हमने नोट कर दिया. अब they are saying if its root is 2 find b and c. ठीक है, तो पहले वन थिंग एट अ टाइम सॉल्व कर लेते हैं. तो फर्स्ट इक्वेशन के हिसाब से my d has to be 0, मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac has to be 0. if b स्क्वायर माइनस 4ac has to be 0, ब्लैक कलर से लिखूं क्या, इसकी विजिबिलिटी थोड़ी कम है. d is equal to 0, तो मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac is 0. b क्या है माइनस b होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू सी इक्वल्स टू 0. तो इससे मुझे क्या मिला, बी स्क्वायर माइनस 12c इक्वल्स टू 0. ये मेरा पहला इक्वेशन मुझे मिल गया, है ना. अब उन्होंने तुम्हें बोला है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी एंड सी. बी एंड सी की एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी है. उसके लिए उन्होंने दूसरा कंडीशन दिया. व्हाट इज द सेकंड कंडीशन, दैट द रूट इज 2. इसका मतलब क्या है, कैसे करेंगे इसको सॉल्व, बताओ. They have given the root as 2. How will we solve it? How will this be useful? How can we input this? Very good. Very good. I got both kind of answers. One is if root is 0, we know यहाँ पे root क्या है, minus b by 2a है. That is 0. है ना, minus b by 2a that is 0 हमें पता चल गया. तो ये एक है, ठीक है. सॉरी, माइनस इज इक्वल टू 0 नहीं, इक्वल्स टू 2. ठीक है. सो बेसिकली यहाँ पे हमें दोनों भी आंसर्स मुझे मिल गया है. वन थिंग इज कि रूट इज माइनस b by 2a एंड दैट रूट इज इक्वल टू 2. माइनस b by 2a इज योर रूट एंड दैट रूट इज इक्वल टू 2. ये एक पॉसिबिलिटी है. या दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि इफ द रूट इज 2, मतलब आई कैन पुट x एज 2 in 3x स्क्वायर माइनस bx प्लस c इक्वल्स टू 0. फेयर, दोनों में से कुछ भी चलेगा, है ना. इफ द रूट इज 2 इट मींस इट फॉलोज द वैल्यू ऑफ x, और आई डू दिस. दोनों में से कौन सा शॉर्ट होगा तुम्हें बताओ, देख के क्या लग रहा है, which of the two methods will be shorter and smarter? Very good. First one. Why? Because if we end up solving the second one, यहाँ पे again we will get another equation between b and c, and then we'll have to simultaneously solve both the equations in order to get our answers. But if we end up taking this method, हमें a की वैल्यू फिक्स्ड पता है तो हम डायरेक्टली b की वैल्यू निकाल सकेंगे, और b की वैल्यू डायरेक्टली निकालने के बाद c की वैल्यू भी आ जाएगी, राइट.
माइनस बी इज माइनस ऑफ माइनस बी दैट इज बी बाई 2a विच इज 6 इज इक्वल टू 2. तो b की वैल्यू आ गई 12 एंड b की वैल्यू 12 आ गई तो ये वैल्यू हम इधर डालेंगे. तो 12 स्क्वायर माइनस 12 इंटू सी इक्वल्स टू 0. तो c की भी वैल्यू आ गई 12. सो व्हाट इज b एंड c? 12 comma 12. Understood? So smarter way is to do 1. So conceptually, it means that if 2 is a root, you can put 2 in 3x square minus bx plus c equals to 0 and you should get the same answer. Okay? And then solve, but smart way is to do. Fair? समझ गया है सबको? We'll go ahead. You got this answer, right? Very nice, very smart. Now we will move to the third concept. हमने क्या सीखा? Finding the root. Nature of roots. अब third thing is relation between the roots. So how do I determine the relation between the roots? है ना? Just a second, I need my charger. ठीक है, तो जो अब तक सिखाया है इसको एब्जॉर्ब करो. यस. सो हम रिलेशन बिटवीन द रूट्स देखेंगे. ठीक है, सो यहां तक आई थिंक इट इज सॉर्टेड दैट वी लर्न टू पार्ट्स. ठीक है, we learned two things, that was how to find the roots and the nature of roots. Now let us move on to the third thing, that is relation between the roots. ठीक है, what is relation between the roots? मतलब अगर दो रूट्स है, दो रूट्स है तो वो एक दूसरे से कैसे एसोसिएटेड है? हाउ आर द टू रूट्स एसोसिएटेड विद अस? तो वी से कि फॉर एनी इक्वेशन ax square plus bx plus c equals to 0 there are two roots, मतलब two values of x, x1 x2, है ना? दो वैल्यूज x की आएंगी, मतलब x1 और x2 ही होंगी दो वैल्यूज, राइट? तो अगर दो वैल्यूज है x1 और x2 तो इसको ना उन्होंने फैंसी करने के लिए अल्फा बीटा दे दिया. अब अल्फा बीटा दे दिया तो बच्चों को लग गया भाई ये क्या है ना? आधा अलजेब्रा तो टफ ऐसे ही हो जाता है, आधा अलजेब्रा तो ऐसे ही टफ हो जाता है अल्फा बीटा थीटा गामा करते करते, है ना? कि बच्चा भाई फ्रस्ट्रेट हो जाएगी, यार ये क्या आ गया? अभी एबीसी तक ठीक था, पहले तो एक्स वाई बोला, फिर एबीसी भी डाला, फिर एलएमएनओ पीक्यू डाला, पीक्यूआरएस डाला, सब डाला, अब अल्फा बीटा थीटा. बट अब है ऐसा, बट वो है कुछ नहीं, इट्स जस्ट अ फैंसी वे ऑफ राइटिंग. वो बोल सकते थे कि द टू रूट्स आर x1 एंड x2, बट नहीं, उनको बोलना था अल्फा बीटा. तो हम बोलेंगे हम क्या कम है कि हमको भी समझ रहा है अल्फा बीटा, ठीक है, हम भी बोलेंगे अल्फा बीटा. सो वी विल से दैट देयर आर टू रूट्स अल्फा एंड बीटा. ठीक है, सो टू रूट्स आर अल्फा एंड बीटा. तो इन दो रूट्स के बीच में रिलेशन क्या होता है? So there are two types of relations which mathematicians have given us and we are learning it. What are those two equations? One is sum of roots. They tell us sum of roots. जो भी तुम्हारे दो रूट्स है, दो आंसर्स आते हैं, राइट? दोनों का सम इज माइनस बी बाय ए. दोनों का भी सम इज माइनस बी बाय ए. कैसे आया ये? कैसे आया ये? बहुत सिंपल सी बात है, हमें पता है दो रूट्स क्या क्या होते हैं. माइनस बी प्लस रूट डी बाय 2a प्लस माइनस बी माइनस रूट डी बाय 2a. यही होते हैं ना दो रूट्स, प्लस वाला माइनस वाला. दोनों को ऐड करो तो क्या होगा? क्या होगा? ये 2 माइनस डी कट हो जाएगा तो ये माइनस 2b बाय 2a आ जाएगा विच इज माइनस b बाय. सिंपल सी बात है. तो उन्होंने भी यही बोला कि भाई सम ऑफ टू रूट्स इज माइनस b बाय a एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा इनटू बीटा इज c बाय. ये भी कैसे आया? ये ऐसे ही आया, माइनस बी प्लस रूट डी बाय 2a इंटू माइनस बी प्लस रूट डी बाय 2a. सॉरी माइनस आएगा ना, ये माइनस, राइट? इन दोनों को ये किया, फिर क्या होता है 2a इंटू 2a डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करो तो ये 4a स्क्वायर बन गया. और ऊपर क्या बना? माइनस बी इंटू माइनस बी इज बी स्क्वायर. नहीं, हाँ, तो ये क्या हो गया? दिस इज बेसिकली a प्लस बी इंटू a माइनस बी विच इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, राइट? तो विच इज माइनस बी स्क्वायर विच इज बी स्क्वायर माइनस बी, राइट? दिस स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर, रूट डी का स्क्वायर तो डी हो गया, एंड डी इज नथिंग बट फिर बी स्क्वायर कट, 4 कट, एक ए कट, एक दूसरा ए कट, और ये सी बाय ए आ गया सॉल्व करके. वही बात है ना? तो एट द एंड इट इज द सेम थिंग, बट हमको उसके एक फॉर्मूला बोलो या एक ऐसा डायरेक्ट शॉर्टकट टिप मिल गया. क्या? कि देयर आर टू काइंड्स ऑफ रिलेशंस गिवन फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस. वन रिलेशन इज द सम ऑफ रूट्स, सेकंड रिलेशन इट इज प्रोडक्ट ऑफ रूट्स. सम ऑफ रूट्स विल बी माइनस बी बाय ए, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स विल बी सी बाय ए. इज दिस सॉर्टेड? इज दिस सॉर्टेड? यस, वेरी गुड. तो इसी के ऊपर क्वेश्चन आएंगे. जब भी उन्होंने
दो रूट्स के बीच में रिलेशन दिया हो. पहले क्या था, नेचर दिया था. क्या नेचर था कि वो रियल है, अनरियल है, इक्वल है, नॉन इक्वल है. तो ये चीज थी, वो अलग थी, दैट्स नेचर. बट दिस इज देयर रिलेशन. ठीक है. दो लोगों का नेचर कैसे हो सकता है, गुस्सैल हो सकता है, स्वीट हो सकता है, जेन्युइन और रियल इंसान हो सकता है, whatever है ना. तो ऐसे टाइप का. बट जब रिलेशन बोला तो वो भाई बहन हो सकते हैं, चाचा मामा काका हो सकते हैं, वैसी वाली बात है. तो यहाँ पे रिलेशन इज डिफरेंट, नेचर इज डिफरेंट. रिलेशन बिटवीन द रूट्स बिकम्स आइदर देयर सम और देयर प्रोडक्ट. तो जब भी दो रूट्स के बीच में कोई रिलेशन दिया होगा, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन के फॉर्मेट में, तो रिलेशन बिटवीन द रूट्स का फंडा लगता है. जैसे कि दिस क्वेश्चन सेज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज द फॉलोइंग प्रॉपर्टी, सम ऑफ रूट्स दैट इज अल्फा प्लस बीटा is 4 and the product of roots alpha beta is 6. Find the root of this equation. You have two equations, two variables. Can you find answers? Sum of roots अगर 4 है और product of roots 6 है, तो roots क्या है? It's like saying कि दो values है, suppose x into x plus y is 4 and x into y is 6. तो find x and y. As simple as this. ऐसा ही सवाल है ये. ठीक है, हमें अल्फा बीटा देख के कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है. टू इक्वेशंस, टू वेरिएबल्स. बताओ क्या होगा आंसर. हाउ डू वी सॉल्व दिस. वी विल इंसर्ट वन इक्वेशन इनटू द अदर. यहाँ पे पहला इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन है. पहले इक्वेशन से समझो, लेट्स से अल्फा इज 4 माइनस बीटा, राइट. तो पुट दिस इन सेकंड इक्वेशन, दैट 4 माइनस बीटा इंटू बीटा इज इक्वल टू 6. तो 4 बीटा माइनस बीटा स्क्वायर is equal to 6. So this gives, wait, नीचे लिख देते, this gives beta square minus 4 beta plus 6 equals to 0. ये तुम्हारा एक quadratic equation बन गया in form of beta. Right? This itself becomes a quadratic equation in form of beta. How do you end up solving it? तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, बेसिकली रूट ही निकाल रहे हैं, राइट. सो वी गोना डू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b. माइनस b मतलब माइनस ऑफ माइनस 4 प्लस माइनस अंडर रूट b square, that is minus 4 square, minus 4 into a is 1 into c is 6 by 2a. This becomes 4 plus minus under root 16 minus 24 by 2. तो ये तो लेस देन 0 हो रहा है, मतलब नो पॉसिबल वैल्यू. तो इट मींस ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन एग्जिस्ट ही नहीं करता जिसका सम 4 और प्रोडक्ट 6 हो. वो एक्चुअली ये देख के मुझे नोटिस हो गया था, बट वी हैव टू गो मैथमेटिकली आल्सो, राइट. तुम्हें कोई भी ऐसे नंबर्स नहीं याद आएंगे, फ्रैक्शनल भी लो, कुछ भी लो, जिनका प्रोडक्ट 6 और एडिशन 4 मिल जाए. बट इट वाज वर्थ अ ट्राई कि हम मैथमेटिकली सॉल्व करें, तो वो करना जरूरी है. डू यू अंडरस्टैंड इट्स प्रोसेस दो. डिड यू अंडरस्टैंड हाउ वी डिड दिस. इट वाज जस्ट टू इक्वेशंस एंड टू वेरिएबल्स टू बी सॉल्व्ड एट द सेम टाइम. और जब हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन एटलीस्ट एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. उसमें हमें बी की वैल्यू निकाली थी. यूजुअल क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम एक्स की वैल्यू निकालते हैं. तो वो सेम बात होती है कि इसमें हमने बोला b इज -4, a इज 1 एंड c इज 6. वो इक्वेशन में डाल दिया. फिर चलो डू दिस वन. वेरी गुड. तो यहाँ पे कंपेयर करो, a की वैल्यू कितनी है, a, b इज 6, c इज 2a-1, राइट. यही है. अब इसके बाद हमको बोला है कि द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज c by a. c by a is 2a-1 by a, and that is given as -1. Solve this. It becomes 2a-1 equals to -a. So 3a is equal to 1. So a is equal to 1 by 3. What is the value of a? It's 1 by 3. Fair? Not a big deal. Very good. Chalo, let's move ahead now. If anybody is finding the class fast, you're going to let me know on the DM, on the personal chat. अब यहाँ पे एक अलग इक्वेशन दे दिया है कि द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन डिफर बाय 2. डिफर बाय 2 मतलब दो इक्वेशन का सब्ट्रैक्शन 2 है. दो इक्वेशन का सब्ट्रैक्शन 2 है. सब्ट्रैक्शन का कोई रिलेशन नहीं है हमारे पास, हमको पता है भाई. ओके, पहले तो मैं नोट करूंगी, a 2 है, b -b है और c है, राइट. अब मुझे पता है, आई नो सम इज -b by a, जो हो जाएगा b by 2. आई नो प्रोडक्ट c by a, इट इज c by 2. ये मुझे पता है.
अब तुमने डिफरेंस दे दिया तो मैं कैसे करूं, क्या करूं, हाउ विल आई सॉल्व दिस? So the smart way to solve it is basically use one relation. And that relation is, you know, alpha plus beta whole square is equal to alpha square plus beta square plus 2 alpha beta. ये हमें पता है. And alpha minus beta square. A plus b square, a minus b square आता है. A plus b whole square, a minus b whole square आता है फॉर्मूला. किसी को नहीं आता, ऐसा तो नहीं है ना? नहीं, वेरी गुड. A square plus b square minus 2ab. यही है. इन दोनों को अगर हम इक्वेट करें इसको इसके हिसाब से, तो हमें पता चलता है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा. इट इज ऑल्सो इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा. राइट, ये जो इतना पार्ट है ना, दोनों इक्वेशंस को यूज करके. राइट, तो इसका जो ये वाला पार्ट है, इससे हमें रिलेशन मिल गया. क्या रिलेशन मिल गया? व्हाट रिलेशन डिड वी गेट? व्हाट रिलेशन डिड वी गेट? we ended up getting a relation that my alpha minus beta square is equal to alpha plus beta square minus 4 alpha beta. Yes or no? Did we all follow till here? Yes, हमें मिल गया अल्फा माइनस बीटा. तो अभी ये हो गया. अब ये तीनों की चीजें इसमें घुसाओ. Rightfully so. Alpha minus beta is 2 square is equal to alpha plus beta whole square is b square by 4 minus 4 into alpha beta is c by 4. Alpha beta is c by 2. Right? इसको हम सॉल्व करने गए तो ये क्या बन गया? 16 is equal to b square minus 8c. So what is the relation between a and c? It is this. Did I make any calculation mistakes here? Or anything that went wrong? No, right? यही है ना. तो उन्होंने पूछा what is the relation between b and c? This is the relation that b square minus 8c is equal to 16. Did you understand? Did we not understand? We did understand, right? So this is how you end up solving it. तो कभी कभी वो क्या देते हैं? They don't give you a straightforward relation. They give you some relation जो addition और multiplication को छोड़ के कुछ है. तो जब भी ऐसा कुछ दिया तो हमको ये ढूंढना है कि भाई हमें सम और प्रोडक्ट ही पता है. तो सम और प्रोडक्ट के फॉर्म में हम लेके कैसे आए इसको? सम और प्रोडक्ट के फॉर्म में हम इसको लेके कैसे आए? फिर डिफरेंस को हम सम और प्रोडक्ट के फॉर्म में लेके आ गए बाय यूजिंग मैथ. राइट, कभी कभी वो ये भी वो ऐसा कुछ भी दे देते हैं कि फाइंड एन इक्वेशन. they'll give you something like this कि find ऐसा कि 1 by alpha plus 1 by beta दे दिया हमने. तो हमें पता है भाई 1 by alpha plus 1 by beta is nothing but alpha plus beta upon alpha beta. Again it is in the form of sum and this thing. Right, तो हम we know what it means. तो कुछ भी अगर हमें ऐसा दे दिया तो we should know that always try to find it in the form of addition and product. ठीक है, sum and the product. So this is what we're gonna do. अब we are gonna move towards the fourth part. ठीक है, ये हो गया nature of रूट्स हो गया. फिर रिलेशन ऑफ रूट्स हमारा हो चुका है. अब रिलेशन ऑफ रूट्स के बाद we are going to move towards the next bit. The next bit is graph of quadratic equations. Graph of quadratic equations is something that we've already learned in our inequalities का class, right? The same thing is going to repeat here. कि graph is based on two values a and d. The graph is based on two values. Your a can be greater than 0, your a can be less than 0, and your d's can take two values. d greater than 0, three values equal to 0, d less than 0. और अभी तो हमें सिग्निफिकेंस भी पता चला गया. d greater than 0 less than 0 equal to 0 का क्या है ना? इन केस ऑफ a greater than 0 इट्स अ सीधा पैराबोला. इस केस में इट्स एन उल्टा पैराबोला. राइट, और ये पैराबोला एक्स एक्सिस के रेफरेंस में कहाँ प्लेस्ड होता है वो वाली बात है. ये एक्स एक्सिस है हमारी. हॉरिजॉन्टल एक्सिस हमेशा एक्स एक्सिस होती है. तो ये एक्स एक्सिस के रेफरेंस में कहाँ होगा उसकी बात है. d greater than 0 में ग्राफ इज लाइक दिस. d equal to 0 में ग्राफ इज लाइक दिस. d less than 0 में ग्राफ इज लाइक दिस. Similarly this. अरे 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 अरे, पूजा टच. यस, और ये ऐसा. इसका क्या सिग्निफिकेंस था? बेसिकली इसका सिग्निफिकेंस यही था बेटा कि यहाँ पे दो पॉइंट्स पे क्यों टच हो रहा था. हम बोल रहे थे कि ये ग्राफ किसका है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का ग्राफ है. ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का ग्राफ है जो जीरो हो जाता है कब? एट टू वैल्यूज. एंड दोस टू वैल्यूज आर एक्चुअली रूट्स ऑफ इक्वेशन. ये यहाँ पे जीरो होता है एट एक ही वैल्यू और यहाँ पे कभी भी जीरो नहीं होता. राइट, सिमिलरली यहाँ पे हमें पता है कि टू रूट्स होते हैं, रियल रूट्स. यहाँ पे वन रियल रूट होता है.
और यहाँ पे 0 रियल रूट्स होते हैं, दैट इज वाई। समझ गए? सेम गोज डाउन साइड ऑल्सो, कि वो पॉइंट इज दिस एंटायर ग्राफ रिप्रेजेंट्स ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज। ये वैल्यू 0 होती है जब ये ग्राफ x एक्सिस को टच करता है, तो 0 हो गया ना, बिकॉज दिस रिप्रेजेंट्स y, राइट? ग्राफ में हमने फंक्शंस के ग्राफ सीखे हैं, राइट? हम y को, हम x की अलग अलग वैल्यूज लेते हैं और x की वैल्यू के हिसाब से हम y प्लॉट करते हैं बाय पुटिंग द x इन द y वाला इक्वेशन। सो व्हेन वी पुट दिस एंड दिस वैल्यू ऑफ x, तब my y becomes 0। इसलिए y becomes 0, इसलिए वो x एक्सिस पे पॉइंट है। जब भी मेरा ये एक्स वाई एक्सिस का पॉइंट है, y 0 कहाँ होता है? x एक्सिस पे y 0 होता है ना, दैट इज व्हाई। So these are the 2 points alpha and beta, जहाँ पे which are the roots of your equation, exactly those 2 points जहाँ पे this graph becomes 0. Why? Because b is greater than 0 और यहाँ पे 2 रूट्स है, हमें पता है। I related everything together. समझा कि कंफ्यूज हुआ? Did you understand it? Yes, all of it makes sense to you now कि ऐसे ग्राफ क्यों होता है, राइट? अब द थिंग इज यहाँ पे भी व्हाट इज दिस ग्राफ? माइनस बी बाई टू है, दिस इज ऑल्सो रूट, राइट? एक वैल्यू पे 0 होता है जो हमें पता है माइनस बी बाई टू है। व्हाट इज दैट वैल्यू? माइनस बी बाई टू है ना? है ना? व्हाट, हाउ डू वी फाइंड रूट? माइनस बी प्लस माइनस रूट डी इज रूट 0 बाई टू है, और रूट 0 तो 0 ही है, तो माइनस बी बाई टू है आंसर है। तो एट द बॉटम इज पार्ट ऑफ दिस कर्व, इट इज टचिंग द y axis and that is minus b by 2। यहाँ पे भी। So this is how the graphs of quadratic equation are. We already learned this graphs. अभी इन्हीं ग्राफ से मैक्सिमा मिनिमा निकलता है। तो बेसिकली अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसा है, इसका मैक्सिमा क्या है? मैक्सिमम वैल्यू, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं, एक्सप्रेशन। इक्वेशन क्यों नहीं? क्योंकि इक्वेशन की वैल्यू तो 0 ही है ना, तो इक्वेशन की वैल्यू तो इक्वल टू 0 होती है। तो इक्वल टू 0 में क्या मैक्सिमम मिनिमा है ना? हम ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का मैक्सिमम मिनिमा निकाल रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, वो इक्वल टू 0 है, तो क्या मैक्सिमम मिनिमा निकलेगा? बट एक्सप्रेशन अगर बोलोगे तो हाँ, इसकी वैल्यू हमेशा 0 नहीं होती है, इसकी वैल्यू ऊपर नीचे कुछ भी जा सकती है, राइट? सो इन दिस काइंड ऑफ ग्राफ, जो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का ग्राफ है, वो 0 तो किन्हीं 2 पॉइंट्स पे ही होता है जब d लेस देन 0, तो यहाँ पे बट वो मिनिमा इधर हिट करता है, मैक्सिमा इधर हिट करता है। तो मैक्सिमम कितना हो सकता है? वो इंफिनिटी तक जा सकता है, राइट? और मिनिमम कितना हिट करता है? माइनस बी बाई टू है। हमने देखा ना अभी, कि बॉटमेस्ट पॉइंट क्या था इसका? माइनस बी बाई टू है। तो हर एक ग्राफ का बॉटमेस्ट पॉइंट माइनस बी बाई टू ही है। सिर्फ डी इक्वल टू 0 में वो रूट भी बन जाता है, हमेशा वो रूट नहीं होगा। तो ये हो गया। और अगर मेरा ग्राफ, अगर मेरा ए नेगेटिव, दिस इज फॉर ए ग्रेटर देन 0, अगर मेरा ए नेगेटिव है तो मेरा ग्राफ उल्टा है, तो मिनिमम इसका मिनिमम माइनस इंफिनिटी है, वो इंफिनिटी तक नीचे जाएगा, बट इसका मैक्सिमम माइनस बी बाई टू है, विच इज दिस टॉप। Fair? Understood the maxima minima of quadratic expression? Yes? Yes? तो ये हम आगे पढ़ेंगे। They are asking you what is the maxima or minimum value of this quadratic expression? अब देखो, ये quadratic expression है हमारा, इसका हमें maxima minima निकालना है। इसका a कैसा है? ग्रेटर देन 0। तो इसका ग्राफ कैसा होगा? ऐसा। इस ग्राफ का मैक्स वैल्यू क्या है? इंफिनिटी। इस ग्राफ का मिनिमम वैल्यू क्या है? माइनस बी बाई टू है। व्हाट इज माइनस बी? माइनस ऑफ माइनस 4, दैट इज 4। व्हाट इज a? a is 3, 2a is 6, तो 2 by 3। तो व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू? 2 by 3। तो इस एक्सप्रेशन का मिनिमम वैल्यू माइनस 2 by 3 है, पॉजिटिव 2 by 3, एंड नेगेटिव वैल्यू अच्छे से लिख लो, मैक्सिमम वैल्यू इंफिनिटी और मिनिमम वैल्यू 2 by 3 है। डू वी गेट इट? यस? चलो, very very good. So this is how we finish the first part of quadratic equation, where we learned all the fundamental concepts that were there. What are the concepts? The concepts are basically यही, finding the root of the equation. root होता क्या है? वो value of x जो तुम डालो तो आंसर 0 है, that's root of equation। फिर उसके बाद nature of roots, d के वैल्यू पे डिपेंड करता है। फिर उसके बाद हम सीखे relationship between the roots, sum and product। फिर we learned the graph of quadratic equation, and last the minimum maximum।